My lovely students, welcome to Mathological. And this is 11th session on permutations and combinations. And in this session, we'll be understanding the topic of circular arrangements, circular permutations basically. We've already done linear arrangement based questions, many questions on that ground. And we'll be extending that to circular arrangements. What is the difference between linear arrangement and circular arrangement? And how should we handle the questions where circular arrangement is considered? Start करते हैं session को. And if you've not already subscribed to the channel and you like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological or can message me on Telegram at ADITYAKT for any questions or queries. Let us start the topic of circular arrangements. Arrangement and permutation is one and the same thing. Circular arrangements or circular permutations. Now let us say if we have 4 persons A, B, C and D. ठीक है, 4 persons A, B, C and D, if they are with us and we have to arrange them in a line A, B, C, D, Antu, Bantu, Chantu or Dantu. ठीक है, so A, B, C, D, if there are 4 persons and we have to arrange them in a line, तो number of ways क्या होंगे? Since there are 4 persons, the number of ways of arranging them will be 4 factorial, which is equal to 24. बेसिकली वी आर अरेंजिंग दम इन अ लाइन और लाइन में हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे. ठीक है, सो एट द फर्स्ट प्लेस वी कैन अरेंज ए और बी और सी और डी, किसी भी एक को अरेंज कर सकते हैं. 4 वेज फॉर द फर्स्ट प्लेस, अरेंज कर लिया एक को. नाउ 3 आर रिमेनिंग, 3 फॉर द सेकंड प्लेस, 2 फॉर द थर्ड एंड 1 फॉर द लास्ट. तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल. ये तो बात सिंपल है. बट अगर मैं सर्कल में अरेंज करना है तो सर्कल और लाइन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन? अब देखो एक बात समझो, लेट अस से हमें एक लाइन को ही सर्कल बनाना है. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, हमें उसको सर्कल बनाना है. तो क्या करेंगे, जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे, एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें. सो इफ यू कनेक्ट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, इट बिकम्स अ सर्कल. इफ वी कनेक्ट दिस पॉइंट विद दिस वन, ठीक है, द एंड विद द स्टार्ट, है ना, अंत अस्ति आरंभम, end is the beginning. So if end becomes the beginning or the end points are connected of a line, तो line becomes a circle. ठीक है, so line converts to a circle when we connect the end points. Or what does that imply? That a circle has no end points, a line has 2 end points and circle has no end points. That is the basic difference. What that implies कि अगर हमने A, B, C, D और end points को connect कर दिया, so now we can say that if they are in a circle, then there is A, then there is B, then there is C and then there is D. ठीक है, so if we start from A और clockwise इनको देखें, so we can say that first there is A, then B, then C, then D. But if instead we start from B, A से ना start करके अगर B से start करें clockwise, so B, then C, then D, then A. अरेंजमेंट एक ही है, बट कहाँ से स्टार्ट करेंगे उस पर हमारा डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट बन रहा है. So यानी कि for this arrangement as well as this arrangement, these two are different linear arrangements, but for circular arrangement both are same. Similarly, if we start from C clockwise, so this becomes C, then D, then A, then B. Or if we start from D, then this becomes D, A, B, C. So there are 4 linear arrangements which are same in a circular arrangement. 4 linear arrangements which are same in a circular arrangement, because total 4 persons are arranged in a circle. So from which person we start the counting, ठीक है, the order, as per that we have a different linear arrangement, but circle में वो मामला same ही है. So in general, if there are n persons, so number of ways of arranging them in a line, that is equal to n factorial. But in case of circle, since circle has no end points, so for these n factorial ways, ठीक है, हम किस पर्सन से स्टार्ट करेंगे? सिंस वी हैव टोटल n पर्सन, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन और द सेकंड और द थर्ड और फ्रॉम द फोर्थ टिल n. सो n हमें केसेस मिलेंगे जो कि सर्कल में सेम होंगे और लीनियर अरेंजमेंट में n फैक्टोरियल वेज हैं. सो फॉर सर्कुलर अरेंजमेंट नंबर ऑफ वेज विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n, विच इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि क्या लॉजिक हुआ हमारा? बिकॉज द लाइन हैज 2 एंड पॉइंट्स बट द सर्कल हैज नन. दैट इज वाई in case of a circle, if we are arranging n distinct items in a circle, then number of ways of arrangement are n factorial divided by n, because for every n linear arrangements we have exactly one circular arrangement. Is that understood? ठीक है, so that is the whole point. ठीक है, for every n linear arrangement, जैसे यहाँ के हमारे 4 cases थे, 4 persons थे,
So for every 4 linear arrangements we have exactly one circular arrangement. So that is the whole logic. So if you have n distinct items, summarize करते हैं argument को. So n distinct items are there, and if you have to arrange those n distinct items in a circle, so number of ways are n minus 1 factorial in general. But in some cases, ये कब है हमारा? This case is applied when clockwise and anti-clockwise are different, which are in general. ठीक है, but in some special cases when clockwise and anti-clockwise are same, कि हमें अभी भी circular arrangement में ही इनको arrange करना है, but circle where clockwise and CW यानी clockwise and anti-clockwise are same. So if clockwise and anti-clockwise are same, then number of ways of arrangement are n minus 1 factorial by 2. So there are two ways to arrange them in a circle. One way when clockwise and anti-clockwise are different, then number of ways are n minus 1 factorial, and when both are same, then number of ways are n minus 1 factorial by 2. ध्यान से इस बात को समझना, अभी इसका डिफरेंस भी समझेंगे क्यों, क्या लॉजिक है, बिकॉज बिना लॉजिक के मैं तुम्हें नहीं बता रहा कोई भी चीज़. लॉजिक जरूर बताना है सो दैट तुम्हें फॉर्मूला याद करने की वजह चीज़ें समझ में आ जाए. क्या ये क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं. देखो, लेट अस से एक हमने सिनेरियो लिया, एक सिंपल केस लेते हैं. लेट अस से आई एम सीटिंग यू इन अ पोजीशन. ठीक है, यू आर ए पर्सन एंड देन अपार्ट फ्रॉम यू देयर आर टू मोर पर्सन्स, अंटू एंड बंटू. ठीक है, सो अंटू एंड बंटू आर टू मोर पर्सन्स. अब नाउ दीज थ्री पर्सन्स आर सीटेड इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट. सो वन वे कुड बी दैट on your right is unto and on your left is buntu. Second scenario could be that you are here and then on your right is buntu and on your left is unto. Now these are two arrangements. ठीक है, as such देखो तो क्या है, in both cases your neighbors are a and b only, unto and buntu are only. ठीक है, यही दो है और total 3 persons ही हैं. But in case, in general, if you are sitting here and on your right is A, on your left is B, that scenario is different than the scenario when on your right is B and on your left is A. These two are not equal. ये दोनों different है. और अगर 3 persons हैं, so for 3 persons, because यहाँ पे क्या है, there are 3 different persons, you, A and B. 3 persons are there, तो number of ways of arrangement क्या आ जाएगा? n minus 1 factorial, which is 3 minus 1 factorial, which is equal to precisely these two ways. These two ways. But instead of u and a and b, if we take let us say some other case, for example, अगर हम लेते हैं 3 flowers को, ठीक है, let us make a garland. So if we make a garland instead, अगर एक garland बनाए, एक माला बनाए, in that माला we have 1 rose, 1 marigold and एक jasmine ले लेते हैं. Rose, marigold and jasmine. Now we have to arrange these 3. Let us say हमने place किया rose को, and then on the right of the rose there is a jasmine, on the left of the rose there is a marigold. ये अरेंजमेंट होगा. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी 3 आर्टिकल्स हैं, ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट. सो अरेंजमेंट क्या होगा? सर्कुलर अरेंजमेंट 2 वेज होंगे, 2 तरीके होंगे. एक केस में रोज, जैस्मिन ऑन द राइट, मैरीगोल्ड ऑन द लेफ्ट. सेकेंड केस कुड बी मैरीगोल्ड ऑन द राइट बट जैस्मिन ऑन द लेफ्ट. बट आर दीज 2 डिफरेंट और सेम? बिकॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू आर सीटिंग, ठीक है, जब 3 पर्सन्स को हम बैठा रहे हैं, सो इन दैट केस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज विल बी डिफरेंट. बट व्हेन अ गार्लैंड इज देयर, तो गार्लैंड के केस में क्या है, वी कैन ऑल्सो इन्वर्ट इट. ठीक है, गार्लैंड को हम पलट भी सकते हैं, उलट और पलट सकते हैं. सो इन बोथ केसेस हमारा जो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है वो सेम हो जाएगा. व्हाट वी मीन बाय दैट, कि देखो अगर हमने पहला कंडीशन देखा है, फर्स्ट पिक्चर को देखा, तो यहाँ पे रोज के राइट में देयर इज जैस्मिन एंड लेफ्ट में देयर इज मैरीगोल्ड. बट इफ अगर हम यहाँ पे इसको पलट दें, ठीक है, पलट दें, देखो अगर हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं, क्लॉकवाइज क्या है, रोज, मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन इन द फर्स्ट पिक्चर. सेकंड वाले में क्लॉकवाइज क्या है, रोज देन जैस्मिन देन मैरीगोल्ड. बट अगर फर्स्ट वाले को ही हम पलट दें, इन्वर्ट कर दें, तो जैसे हम इसको इन्वर्ट करेंगे सेकंड वाला पिक्चर ही बन जाएगा अपना. बिकॉज ये गार्लैंड हमारा उल्टा पलटा जा सकता है, एक गार्लैंड हो, एक ब्रेसलेट हो. सो इन दीज केसेस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बिकम्स एग्जैक्टली द सेम. But in general, if we are seating persons, तो वहाँ पे clockwise and anti-clockwise will be different. That is why when we are seating the persons, number of ways of arrangement will be n minus 1 factorial for different items, for different persons, obviously. ठीक है, but when we are making a garland or a necklace or a bracelet, तो in case of a garland,
in case of a necklace, in case of a bracelet, in these three cases, or unless otherwise mentioned, किसी और क्वेश्चन में mentioned हो, so when clockwise and anti-clockwise are same, the number of ways of arrangement are n minus 1 factorial divided by 2. So in case of a garland, if we have three flowers, three different flowers, number of ways of arrangement क्या हो जाएगा, 2 factorial divided by 2, यानी कि there will be exactly one way. There is only one way, और उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है. So that should be clear. We have basically two cases. One case when n distinct items are arranged in a circle, clockwise and anti-clockwise different, n minus 1 factorial. When they are same, then n minus 1 factorial divided by 2 will be the scenario. Okay. अब एक दो और स्पेसिफिक केसेस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से वी हैव टेकन अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल लेते हैं. An equilateral triangle is there, a triangle with equal sides, and there is a triangular table with the total 3 chairs, one on each side. We have 3 chairs, one on each side. Now this is not a circular table, this is a triangular table, but मामला concept will be very similar to that. ठीक है. Let us say we are seating 3 persons, A, B and C. Aman, Baman and Chaman, we have 3 persons. ठीक है. We are seating these 3 persons around this triangular table. तो number of ways of arrangement क्या होगा इनका? कैसे अरेंज करेंगे इनको? Again, since triangle is same as circle, सर्कल जैसा ही मामला है, एंड वी आर सीटिंग एग्जैक्टली 1 person on each side. ठीक है. अगर एग्जैक्टली 2 persons on each side होता तो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता. इफ देयर वर 2 persons on one side, 1 on each side, तो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता. बट एज लॉन्ग एज देयर इज 1 person on each of the sides, ठीक है, और दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि साइड्स का लेंथ इज नॉट डिफरेंट, तो दिस ट्रायंगल इज सेम इन एवरी वे फ्रॉम एवरी साइड. तुम इस डायरेक्शन से देखो, ठीक है, तब भी दिस इज द सेम ट्रायंगल, सेम ट्रायंगुलर टेबल. और इस डायरेक्शन से देखो, बिकॉज दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो यहां से भी ये मामला सेम ही है. या फिर तुम थर्ड साइड से देखो तो भी मामला सेम ही है. सो दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट इज वाई तुम किसी भी साइड से देखो तो दिस इज सेम, सेम एज द सर्कल, क्योंकि सर्कल में भी तुम कहीं से भी देखो, एज लॉन्ग एज ऑल चेयर्स आर आइडेंटिकल, तो तुम्हारा जो प्लेसमेंट है, अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल सेम ही होगा. क्लियर? तो यहाँ भी मामला एक्जैक्टली सेम है. वेदर यू प्लेस, फॉर एग्जाम्पल, यू प्लेस ए हियर एंड देन बी हियर एंड देन सी हियर. ठीक है. सो ए, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इन एवरी केस फ्रॉम दिस चेयर, सो ए देन बी देन सी, दिस कुड बी वन केस. और वी कैन हैव ए ऑन दिस प्लेस. ठीक है. अगर हम ए यहाँ पे रख रहे हैं, फिर बी को प्लेस कर रहे हैं, फिर सी को प्लेस कर रहे हैं, तो मामला क्या बनेगा हमारा? ए विल बी एट दिस प्लेस, बट हम स्टार्ट हमेशा क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से ही, तो सी ए बी. But this arrangement is also same because all three sides are same. So this is also same as A, B, C only. और या फिर थर्ड केस होगा हमारा when this is B, C, A. A, B, C, B, C, A और C, A, B all three are exactly same. यहाँ पे भी number of ways of arrangement क्या आएगा? That will be n minus 1 factorial only, which is basically 2 factorial. Meaning there will be only two cases. Only two cases will be there. ठीक है. क्या ये clear है? Because ultimately यहाँ पे भी clockwise एंटी clockwise तो different है. So one case will be when this is A B C and second case will be when this is A C B. Now these two are not equal. Otherwise A B C C A B B C A equal है. Similarly A C B C B A and B A C, all these three are equal. So there are exactly two scenarios when we are arranging three persons on a circular table, on a triangular table with equal sides. Similar case होगा हमारा if we have, let us say, a square. And 4 persons are there, so 4 seats. Now this is a square, यानी कि all sides are equal. तो कहीं से भी देखो ये मामला ही बिल्कुल सिनेरियो डिट्टो है हमारा सर्कल के जैसा. तो बेसिकली नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट क्या आ जाएगा? दैट विल बी एग्जैक्टली n minus 1 factorial. As long as we have a regular polygon and polygon has n sides and n persons are there, ठीक है, n chairs, one on each side, तो n persons, number of ways of arrangement will be n minus 1 factorial only. This is same as the circular arrangement. Now let us start the questions. On basis of that, let us start the questions. Okay, so first question, simple question. If you have, let us say, 5 persons
वी हैव टू अरेंज देम इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट. तो क्या अरेंजमेंट के वेज होंगे? दैट विल बी 5 minus 1 factorial which is 4 factorial which is 24. Now let us say we have 5 flowers, 5 distinct flowers, and we have to make a garland. So number of ways क्या आएंगे? 5 distinct flowers हैं, garland बनाना है, तो 5 minus 1 factorial. But since this is a garland, तो clockwise anti clockwise same होगा, divided by 2. So this will be equal to 12 ways. Okay. ठीक है. Now first question लेते हैं. With that understanding, first practice question. The first question is, one Indian and 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table. Then find the number of ways in which all men are seated adjacent to their respective wives. Pause the video and try to solve it. ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट भी यूज होगा और साथ में अपना जो प्रीवियसली अंडरस्टैंडिंग है हमारा उसको भी यूज करेंगे. तो 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन मैन एंड देयर रिस्पेक्टिव वाइफ्स, यानी टोटल पर्सन्स कितने हैं? 10 पर्सन्स आर देयर. तो देयर इज बेसिकली 1 इंडियन हस्बैंड एंड वाइफ इज वाइफ. ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 5 कपल्स. बाकी कोई इंडियन के एडिशनल कंडीशन था नहीं, तो बेसिकली 5 कपल्स है हमारे पास. 5 कपल्स, हस्बैंड एंड वाइफ्स, टोटल 10 पर्सन्स. बट कंडीशन क्या है हमारा? दे हैव टू बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट all men are seated adjacent to their respective wives, यानी कि all couples will be seated together. Men adjacent to their respective wives, यानी कि husband and wife का couple साथ में ही रहेगा. H1W1 साथ में रहेगा, H2W2 साथ में रहेगा, H3W3 साथ में रहेगा, H4W4 साथ में रहेगा एंड H5W5 साथ में रहेगा, यानी कि सारे के सारे कपल्स आपस में साथ में रहेंगे. तो ऑल कपल्स विल बी स्ट्रिक्टली टुगेदर. नो वी टोटल 5 कपल्स सर्कल में अरेंज करना है. हमेशा जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट हमें करना होगा तो सबसे पहले जो हम अरेंजमेंट करेंगे, पहला जो अरेंजमेंट करेंगे, बिकॉज बिफोर दैट अरेंजमेंट हमारे पास एवरीथिंग इज आइडेंटिकल. ये एक बात को और समझ लेते हैं शॉर्ट में. देखो, लेट अस से वी 3 बॉयज एंड देन वी हैव 2 गर्ल्स. ठीक है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, और हमें इनको एक सर्कल में, एक टेबल, सर्कुलर टेबल में बिठाना है, अरेंज करना है. सो नंबर वेज कितने होंगे? सो इफ वी आर लेट अस से अरेंजिंग फर्स्ट 3 बॉयज, देयर इज नो अदर कंडीशन, 3 बॉयज को अरेंज कर रहे हैं. सो सिंस 3 बॉयज हैव टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कल, या सर्कल में इनको खड़ा करना है, तो 3 बॉयज को अरेंज कर रहे हैं सर्कल में. नंबर वेज अरेंजमेंट हो जाएंगे हमारे 3 minus 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल. बट जैसे ही तुमने बॉयज को अरेंज कर दिया, नाउ वी हैव 3 बॉयज, B1 B2 B3. अब बॉयज़ की पोजीशन हो गई फिक्स, यानी कि बॉयज़ हमारे ऑलरेडी सर्कल में आ गए हैं. इसके बाद में जो अरेंजमेंट करोगे, यानी कि नाउ दैट विल बी अरेंजिंग गर्ल्स, तो उनके लिए नाउ वी फिक्स पोजीशंस. ठीक है, सो अब गर्ल्स का अरेंजमेंट विल बी सेम एज दैट ऑफ लीनियर अरेंजमेंट. अब जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी सेम एज लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि गर्ल्स विल बी अरेंज, फॉर एग्जांपल n गर्ल्स विल बी अरेंज नाउ इन सम केस विद n फैक्टोरियल बेस. क्लियर है? अगर गर्ल्स को हमें सेपरेट रखना था, लेट अस से 2 गर्ल्स वर सेपरेटली, इनको सेपरेट रखना था, तो गर्ल्स कैनॉट बी टुगेदर. सो गर्ल्स के लिए चॉइसेस क्या हैं? ईदर सम गर्ल विल बी हियर और हियर और हियर. तो 3 स्पेसेस आर देयर बट दे आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स. सो वी हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट 2 प्लेसेस फॉर गर्ल्स, 3 से 2 वेज में. अब गर्ल्स को जब प्लेस करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बॉयज़ की पोजीशन को फिक्स कर दिया है. जैसे ही हमने पहले पर्सन की पोजीशन को फिक्स किया, इसके बाद का जो भी अरेंजमेंट होगा वो हमेशा एक लीनियर अरेंजमेंट होगा. दैट विल ऑलवेज बी अ लीनियर अरेंजमेंट. सो बेसिकली 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. या और अच्छे से समझे इस बात को, बिकॉज बाद में यही चीज़ें फंसाएंगी, इसलिए पहले से इसको समझ के चलते हैं. लेट्स से जब हम 3 बॉयज़ को भी अरेंज कर रहे थे, सिर्फ 3 बॉयज़ को अरेंज करें, सो वी हैव टोटल 3 सीट्स, टोटल 3 सीट्स. अब जब हम फर्स्ट पर्सन को अरेंज कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज 3 सीट्स आर आइडेंटिकल, तीनों सीट्स हमारी एक्जैक्टली आइडेंटिकल, सर्कल है, बिल्कुल आइडेंटिकल सीट्स हैं. तो जब पहला बॉय हमने चूज किया, 3 बॉयज लेट अस से B1 B2 B3, तो पहले बॉय को कहीं पे भी बिठाओ, नंबर ऑफ वेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. बिकॉज पहले बॉय को यहाँ पे भी बिठाओ तो भी बात वही है, यहाँ बिठाओ तो भी बात वही है, यहाँ बिठाओ तो भी बात वही है. तो फर्स्ट बॉय को प्लेस करने का नंबर ऑफ वे क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1. बट जैसे ही तुमने लेट अस से B1 को यहाँ प्लेस कर दिया, सो नाउ दैट यू प्लेस्ड B1, अब इसके बाद में बॉय 2 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस है देयर, या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा. ऑब्वियसली दिस इज ऑन द लेफ्ट, दिस इज ऑन द राइट, तो बोथ आर डिफरेंट. तो 2 वेज फॉर द बॉय 2, और बॉय 2 को बिठाने के बाद बॉय 3 के लिए एक्जैक्टली 1 प्लेस ही बचा, तो 1 फॉर द बॉय 3. तो नंबर ऑफ वेज क्या आ गया हमारे? 1 into 2 into 1 विच इज 2 फैक्टोरियल ओनली.
ठीक है, विच इज n माइनस वन फैक्टोरियल, बिकॉज अगर n बॉयज होते तो पहले बॉय को बिठाते n में से, उसके लिए एक्जैक्टली एक ही तरीका होता है, जैसे ही पहले बॉय को प्लेस करें, नाउ n माइनस वन बॉयज आर रिमेनिंग, n माइनस वन सीट्स आर रिमेनिंग, n माइनस वन फैक्टोरियल वेज में यू कैन अरेंज दैट. So that is why in a circular arrangement, because फर्स्ट पर्सन के लिए सर्कल में कहीं पे भी उसको प्लेस करो दैट इज आइडेंटिकल, उसके बाद से ही कहानी शुरू होती है. दैट इज वाई n माइनस वन फैक्टोरियल इज सेट. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हाँ हमारे पास देर आर टोटल 5 कपल्स जिनको हमें अरेंज करना है, और कपल्स सारे के सारे साथ में ही रहेंगे. तो 5 कपल्स हैं, सर्कल में अरेंज करना है, नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे हमारे 5 माइनस वन फैक्टोरियल. और अरेंजिंग 5 कपल्स इन अ सर्कल. बट इनको अरेंज करने के बाद में क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना ही कह रहा है कि ऑल मेन शुड बी सीटेड एडजेसेंट टू देयर वाइफ्स, बट उनका ऑर्डर क्या होगा दैट कैन डिफर. फॉर एग्जाम्पल, हर एक कपल के केस में दो केसेस बनेंगे. क्या दो केसेस बनेंगे? इधर हस्बैंड विल बी फर्स्ट देन वाइफ, और वाइफ फर्स्ट देन हस्बैंड. ये दो सिनारियोज बनेंगे. बेसिकली टू फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज टू पर्सन इनसाइड अ ग्रुप. ठीक है, तो टू फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज देम इन दिस ग्रुप, टू फैक्टोरियल वेज में 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 इन दिस ग्रुप, एंड मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम. टोटल हमारे केसेस बन जाएंगे बेसिकली 5 माइनस वन फैक्टोरियल एंड 24, 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 to the power 5. So this is 24 into 32. This will be our total number of ways, which is equal to 768. So our answer for this question will be 768. Is that clear? In 768 we can arrange the 10 persons such that all men are seated adjacent to their respective wives. Okay, clear है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. In how many ways can 3 men and 3 women be seated at a round table such that there are 6 parts of this question? So pause this video, solve all these parts, understand तो उनके पीछे डिफरेंस क्या क्या है, और अकॉर्डिंगली सॉल्व करो. स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है. पार्ट ए, नो रेस्ट्रिक्शन. तो 3 men and 3 women. 3 men है, 3 women है. ऑब्वियसली ऑल men विल बी डिस्टिंक्ट, ऑल women विल बी डिस्टिंक्ट. ठीक है, सबके सब डिस्टिंक्ट है. 6 पर्सन है इन टोटल. तो 6 पर्सन को अरेंज करना है एक सर्कल में, राउंड टेबल यानी सर्कल में. तो सर्कल में अरेंज करना है 6 पर्सन को, n माइनस वन फैक्टोरियल स्ट्रेट अवे. So that will be 5 factorial which is equal to 120. ये तो हो गया. बी, नो वुमेन आर टुगेदर, यानी कि वुमेन कैन नॉट बी टुगेदर. इनको सेपरेट ही रखना पड़ेगा. और अगर वुमेन को सेपरेट रखना है तो पहले जिनको सेपरेट नहीं रखना है, जिन पर कोई कंडीशन नहीं है, पहले उनको अरेंज कर दो. तो सिंस वुमेन हैव टू बी केप्ट सेपरेट, तो मेन को पहले अरेंज करो. 3 men आर देयर. 3 men कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज. सॉरी, सर्कल में अरेंज कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल वेज. मैन 3 men कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज. अब इनके बीच में हमारे पास सिंस वुमेन हैव टू बी सेपरेट 3 स्पेसेस आर देयर, और वुमेन भी हमारी कितनी है 3 ही है. तो सारी की सारी 3 स्पेसेस हमारी वुमेन ही आएंगी. तो सेलेक्ट करना है स्पेसेस को 3C3 वेज में वी कैन सेलेक्ट, और एक्जैक्टली 1 वे में, बिकॉज 3 ही स्पेसेस है, 3 ही हमारे वुमेन है. तो 3C3 वेज में वी कैन सेलेक्ट द स्पेसेस और सीट्स फॉर वुमेन, एंड नाउ वुमेन कैन बी अरेंज इन दो स्पेसेस इन n फैक्टोरियल वेज, बिकॉज अब मामला बिल्कुल लीनियर अरेंजमेंट जैसा है. अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना. 2 फैक्टोरियल इंटू 3C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी द आंसर, विच इज 2 into 1 into 6, that is equal to 12 ways. In 12 ways we can arrange men and women. Clear? अगर हमारे पास नंबर ऑफ मेन ज्यादा होते, फॉर एग्जांपल 3 के बजाय 4 मेन होते, तो फिर यहाँ पे हमें स्पेस सिलेक्शन और भी बेटर करना होता है. यानी कि फॉर एग्जांपल 4 मेन होते तो 4 स्पेस होते, 4C3 से सेलेक्ट करते. बात एक ही है, तो इसीलिए 3C3 लिखा हमने इंस्टेड ऑफ 1. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. 2 पर्टिकुलर वुमेन मस्ट सिट टुगेदर. 2 पर्टिकुलर वुमेन मस्ट सिट टुगेदर, यानी कि 2 पर्टिकुलर वुमेन हमारी ऐसी हैं जिनको कि हमें साथ में बिठाना है. पार्ट सी, जैसे मेन आर M1, M2, M3, वुमेन आर W1, W2 एंड W3. नॉट W1 एंड W2 को मान लेते हैं, बिकॉज 2 पर्टिकुलर वुमेन, एनी 2 नहीं लिखा है, 2 पर्टिकुलर वुमेन हैव टू बी सीटेड टुगेदर. W1 W2 को अगर साथ में बिठाना है तो इनको एक यूनिट मान लो, जैसा हम तक क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं. जिनको साथ में बिठाना है, दोज हु हैव टू बी सीटेड टुगेदर शुड बी कंसिडर एग्जैक्टली 1 यूनिट. हाँ, वो आपस में अरेंज हो सकते हैं, ध्यान रखना. तो नाउ वी हैव M1, M2, M3 सेपरेट यूनिट्स, W1 W2 साथ में, W3 अलग से होगा. टोटल 5 यूनिट्स है जिनको क्या अरेंज करना है, सर्कल में अरेंज करना है. तो हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई these 2 women can arrange among themselves, to multiplied by 2 factorial. This will be our answer, which is 4 factorial, and 24 into 2 48. So 48 ways में we can arrange these 6 persons such that women 1 and women 2 are seated together in all cases. अब D question हमसे कह रहा है कि 2 particular women must not sit together, यानी कि 2 को साथ में नहीं बिठाना है. तो मान लेते हैं फिर से W1 W2 कि इनको साथ में नहीं बिठाना है. तो W1 W2 कैन नॉट बी सीटेड टुगेदर, एंड इफ दे कैन नॉट बी सीटेड टुगेदर, तो जिनको पहले साथ में बिठा सकते हैं उनको बिठा लो. यानी कि M1, M2, M3 एंड W3
इन 4 को पहले अरेंज कर लो, 4 को अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल वेज में वी कैन अरेंज। और इन 4 के बीच में स्पेसेस कितने बचेंगे हमारे पास, स्पेसेस बचेंगे कितने, 4 में से हमें 4 स्पेसेस बचेंगे, जितने पर्सन है उतने ही स्पेसेस होंगे उनके बीच में, ठीक है 4 स्पेसेस हैं, बट हमारे पास वुमेन कितनी है 2, इनको सेपरेटली अरेंज करना है, तो इन 4 में से 2 स्पेसेस को हम सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ दोज 2 स्पेसेस विल बी 4c2 एंड देन 2 फैक्टोरियल वेज में दे कैन अरेंज, तो 3 फैक्टोरियल into 4c2 into 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी द आंसर व्हिच विल बी 6 into 6 into 2 72 वेज। पहले हमने ये किया कि m1 m2 m1 आ गया, लेट अस से m2 आ गया, m3 आ गया, w3 आ गया, एंड नाउ वी हैव 4 स्पेसेस बिटवीन द, एंड आउट ऑफ दीज 4 हमें कोई 2 सेलेक्ट करनी है, तो सिलेक्शन ऑफ 2 स्पेसेस विल बी डन इन 4c2 वेज, एंड देन वहाँ पे अरेंज करना है w1 और w2 को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल into 4c2 into 2 फैक्टोरियल, आंसर विल बी 72 इन दिस केस। ये तो एक तरीका हो गया। सेकंड मेथड कुड हैव बीन कि टोटल वेज हमारे पास क्या थे, टोटल वेज थे 5 फैक्टोरियल यानी 120, और 2 पर्टिकुलर वुमेन मस्ट नॉट सिट टुगेदर, तो या तो साथ में बैठेंगे या साथ में नहीं बैठेंगे, दो ही तो केसेस होंगे, तो आउट ऑफ टोटल केसेस 120 में से सब्ट्रैक्ट दोज केसेस व्हेन दीज टू आर टुगेदर, तो व्हेन w1 एंड w2 आर टुगेदर ऑलरेडी हमने देखा हुआ 48 आया, तो 120 माइनस 48 दिस विल बी 72, वैसे भी कर सकते थे कि टोटल माइनस व्हेन दीज 2 पर्टिकुलर वुमेन सिट टुगेदर, दैट विल ऑल्सो बी सेम एज काउंटिंग द केसेस व्हेन दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर। Okay. Now case number E, all men must sit together. All men must sit together. So if all men have to be seated together, तो सारे के सारे men का एक ही ग्रुप बना लो, and then women are separate. तो 4 यूनिट्स हैं इन टोटल, और इनको अरेंज करना सर्कल में, अरेंजमेंट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल वेज में, एंड men कैन अरेंज अमंग देमसेल्व्स, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल फॉर 3 men, 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, टोटल वेज हो जाएंगे हमारे 36 वेज, we can arrange them in 36 ways. Okay, क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रहा है, पार्ट एफ कह रहा है हमारा कि देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन 2 पर्टिकुलर मैन, 2 पर्टिकुलर मैन यानी कि 2 मैन हैं स्पेसिफिकली, और उनके बीच में देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन। सो इन पार्ट एफ लेट अस से m1 और m2 के बीच में वी हैव एग्जैक्टली 1 पर्सन, तो m1 है m2 है, उनके बीच में एक पर्सन है, इन हाउ मेनी वेज दीज कैन बी अरेंज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, m1 m2 को बिठा लेते हैं, दोज 2 पर्टिकुलर मैन, ठीक है, m1 m2 को बिठाएंगे, तो इफ देयर आर टोटल 6 सीट्स एंड सिंस ऑल सीट्स आर आइडेंटिकल, सो m1 और m2 को बिठाना, उनके बीच में एग्जैक्टली 1 पर्सन होगा, तो m1 को कैसे भी बिठा सकते हो, ठीक है, m1 को हमने बिठा दिया, लेट ऐसे इस सीट पे, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे m1 को बिठाने का, एग्जैक्टली 1 वे होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, बिकॉज ऑल सीट्स आर आइडेंटिकल, सारी सीट सेम है, कोई नंबर तो है नहीं, कोई कलर डिफरेंट नहीं है, तो ऑल सीट्स आर आइडेंटिकल, m1 को बिठाने का तरीका कितने होंगे, एग्जैक्टली 1। नाउ m2 को बिठाने के नंबर ऑफ वेज, सिंस देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 1 चेयर बिटवीन द 2, सो ईदर m2 बैठेगा यहाँ पे या फिर बैठेगा यहाँ पे, सॉरी इस पे नहीं, एक स्पेस इधर भी तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो या तो बैठेगा इस सीट पे, ईदर इट विल बी ऑन दिस सीट और इट विल बी ऑन दिस सीट। m2 के लिए हमारे पास 2 स्पेसेस ऑप्शन, तो 2 वेज टू सीट m2। अब m2 को जैसे हमने बिठा दिया, किसी एक को बिठा दिया हमने, ठीक है, मान लिया कि m2 को हमने सीट कर दिया है इस सीट पे, m2 इज हियर, m1 यहाँ पे, m2 यहाँ पे, नाउ बिटवीन देम वी हैव टू सीट 1 पर्सन। अब 4 पर्सन आर रिमेनिंग, आउट ऑफ दीज 4 वी हैव टू सेलेक्ट 1 पर्सन टू सीट ऑन दैट प्लेस, इनटू 4c1 से वी कैन सेलेक्ट दैट पर्सन जिसको बीच में बिठाना है, एंड बाकी बचे हुए 3 को अरेंज कर देंगे 3 फैक्टोरियल वेज में, so this will be 2 into 4c1 into 3 factorial, which is equal to 8 into 6, 48 ways. So in 48 ways we can arrange the 6 persons such that exactly 1 person is seated between 2 particular men. क्या ये क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, how many different necklaces can be made with 6 beads if part A all beads are identical, part B all 6 beads are of different colors, and part C 4 beads are red and 2 beads are yellow। पार्ट ए ऑल बीड्स आर आइडेंटिकल, पार्ट बी ऑल 6 बीड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो अगर सारी की सारी बीड्स हमारी आइडेंटिकल हैं और हमें एक नेकलेस फॉर्म करना है, नेकलेस में क्या डिफरेंस होगा, नेकलेस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक्जैक्टली सेम होगा, ये हमारा बेसिक डिफरेंस आएगा, बेसिक डिफरेंस आएगा अब तक का जो सीटिंग किया उससे।
Isn't it so? तो पार्ट ए हमारा कह रहा है कि ऑल द बीड्स आर आइडेंटिकल. इफ ऑल बीड्स आर आइडेंटिकल तो क्या होगा? सिंस ऑल बीड्स आर आइडेंटिकल तो नंबर ऑफ वेज कितने होने चाहिए? देखो, अगर हमारे पास लेट्स से 3 ही बीड्स होती और इनको अरेंज करना है, जब सारी बीड्स हमारे आइडेंटिकल है तो नंबर ऑफ वेज तो एग्जैक्टली 1 होगा, कोई और वे बनता ही नहीं है. ठीक है, बिकॉज इन एवरी केस अगर तुम देख रहे हो कहीं से भी देखो, क्लॉकवाइज देखो, एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो सारे के सारे कॉन्सेक्यूटिवली आ रहे हैं और सारे सेम ही कलर के हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता. ओनली वन वे इज पॉसिबल, एग्जैक्टली वन, बिकॉज ऑल आर सेम. सिलेक्शन एक ही तरह से हो सकता है फॉर एवरी प्लेस. सो वन वे इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल बीड्स आर आइडेंटिकल. तो ए पार्ट तो सिंपल है बिल्कुल. बी पार्ट कह रहा है ऑल 6 बीड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और डिफरेंट कलर की हो गई यानी कि सारी डिस्टिंक्ट हो गई, सारी डिफरेंट हो गई, सारी बीड्स हमारी डिफरेंट हो गई. तो जब सारे के सारे 6 बीड्स डिफरेंट है, दिस इज सेम एज जो हमारा 6 पर्सन का सीटिंग अरेंजमेंट वाला केस है, बिल्कुल सेम हो गया. द ओनली डिफरेंस विल बी दैट इन दिस केस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेम होगा, बिकॉज दिस इज अ गार्लैंड. दिस विल ऑलवेज बी सेम. अदरवाइज सबसे पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे, बट उससे पहले अरेंजमेंट निकाल लो. 6 बीड्स को अरेंज करना है, ऑल बीड्स आर डिस्टिंक्ट, तो 6 फैक्टोरियल सॉरी 6 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल वेज में दे कैन बी अरेंज्ड. बट सिंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है तो विल ऑल्सो बी डिवाइडिंग बाई 2. आंसर विल बी 5 factorial by 2 which is equal to 60 ways. If all 6 speeds are different, then number of ways will be 60. Okay. Clear है? अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज beads can be arranged in a necklace if 4 beads are red and 2 are yellow. 4 are red and 2 are yellow. पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से 5 are red and 1 is yellow. अब जो नंबर लोअर है पहले उसको अरेंज कर दो. 5 रेड एंड 1 येलो. ठीक है, 6 प्लेसेस है हमारे पास. 5 रेड एंड 1 येलो. सो 1 येलो को पहले प्लेस करो. तो येलो को प्लेस करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 6 हैं, बट क्योंकि ये गार्लैंड है तो सारे के सारे प्लेसेस क्या आइडेंटिकल है. स्टार्ट हम जहाँ से करें तो सारे के सारे प्लेसेस हमारे पास आइडेंटिकल है. तो प्लेस करने का तरीका कितना होगा? 1 येलो को प्लेस करने के लिए विल बी हैविंग एग्जैक्टली 1 वे. कहीं पे भी प्लेस कर दो. लेट अस से हमने येलो को प्लेस कर दिया ऑन दिस पोजिशन, ठीक है, ऑन दिस वन, और एक ही तरह से प्लेस होगा, देयर इज ओनली 1 वे. और जैसे ही हमने येलो को प्लेस कर दिया तो इसके बाद में बाकी बचे हुए ऑल 5 स्पेसेस से विल बी प्लेसिंग ऑल द रेड बीड्स, और सारी रेड बीड्स आइडेंटिकल है. तो देयर इज एग्जैक्टली 1 वे टू प्लेस ऑल द रेड बीड्स, यानी कि हर एक केस में क्या होगा? येलो एंड देन ऑल 5 रेड बीड्स टुगेदर. अगर 5 रेड और 1 येलो है, सी क्वेश्चन डिफरेंट है, बट हम कह रहे हैं 5 रेड और 1 येलो है, तो येलो को प्लेस करने का एग्जैक्टली 1 वे, और बाकी की बची हुई जो 5 हमारी रेड बीड्स हैं वो सारी की सारी एक साथ ही आएंगी. तो 1 into 1 यानी कि एग्जैक्टली 1 वे होगा. देयर इज नो अदर वे. तो इन ऑल द केसेस बेसिकली हमारा क्या बनेगा? येलो देन 5 रेड. अब ये सर्कल में है तो तुम देख सकते हो, तो देखने में ऐसा होगा कि तुम्हारा अगर तुम रेड से ही स्टार्ट करोगे तो रेड 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 5 रेड और फिर येलो, या फिर 3 रेड देन येलो. मतलब कि बात एक ही है, चाहे तुम इसको ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो कि 2 रेड देन येलो और उसके बाद में 3 रेड, कैसे भी पढ़ो, बट द पॉइंट इज कि ऑल 5 रेड आर टुगेदर, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है? ज्वाइंट है. अल्टीमेटली एक सर्कल है, सर्कल है. ठीक है, सो सर्कल में हमारा क्या है? ऑल 5 रेड आर टुगेदर, यानी कि देयर इज एग्जैक्टली 1 वे. बट अगर हमारे पास 4 बीड्स आर रेड एंड 2 आर येलो तो नंबर ऑफ वेज कितने आने वाले हैं? अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे भी हमारे पास रेड येलो वाले कम है, छोटा नंबर है. 4 रेड हैं, 2 येलो हैं, तो पहले 2 येलो को अरेंज कर दो. ठीक है, पहले 2 येलो को अरेंज कर दो. तो एक येलो हमारी लेटर से यहाँ पे आ गई एंड देन वी 1 मोर येलो. अब बीच में हमारे पास दीज 2 स्पेसेस आर देयर. अब यहाँ पे वी कैन हैव रेड बीड्स. ठीक है, ईदर ऑल रेड बीड्स विल बी ऑन वन साइड और सम विल बी ऑन वन साइड, सम विल बी ऑन द अदर साइड. ओके, या तो सारी की सारी रेड बीड्स हमारी एग्जैक्टली एक साइड पे आ जाएंगी और सम विल बी ऑन वन साइड, सम विल बी ऑन द अदर साइड. 4 आर इन टोटल. तो क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं? देखो ये सिनेरियो बन सकता है 4 बीड्स हैं टोटल. ठीक है, सो लेट अस से दिस इज पॉसिबल दैट वी कैन हैव 4 बीड्स ऑन दिस साइड एंड 0 ऑन दिस साइड. ठीक है, 4 ऑन वन साइड 0 ऑन अदर साइड. और वी कैन हैव 3 ऑन वन साइड 1 ऑन द अदर साइड, और 2 ऑन वन साइड एंड 2 ऑन द अदर साइड. क्या और कोई केस बनेगा? 4 0 3 1 2 2. तो यहाँ पे हमारा 4 0 वाले कितने केसेस बनेंगे? देखो अल्टीमेटली सिंस दिस इज अ नेकलेस, तो नेकलेस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है. सो इफ 4 आर ऑन द लेफ्ट साइड, सो दिस विल बी लाइक येलो
एंड देन रेड 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 देन येलो, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो ये ज्वाइंट है हमारा, ठीक है। अब यही सेम चीज तुम्हारा दिस विल बी सेम एज व्हेन ऑल फोर आर ऑन द राइट साइड, बिकॉज लेफ्ट और राइट क्या होगा, सेम होगा जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो बोथ दीज आर सेम, तो तुम्हें बस एक साइड का ही देखना है, 4 0 इज सेम एज 0 4, देयर इज एग्जैक्टली वन वे, एंड सिंस ऑल फोर रेड बीड्स ये सारी की सारी सेम है, आइडेंटिकल हैं, इनका अरेंजमेंट आपस का एग्जैक्टली वन होगा। सिमिलरली टू येलो दीज आर ऑल्सो आइडेंटिकल, तो इनका भी अरेंजमेंट एग्जैक्टली एक वे में ही होगा। तो वन वे इज देयर व्हेन फोर रेड बीड्स आर टुगेदर, दैट इज एग्जैक्टली वन वे, फर्स्ट वे हो गया हमारा। सेकंड केस क्या बनेगा, व्हेन 3 रेड बीड्स आर टुगेदर और फिर बची हुई वन इज ऑन द सेपरेट साइड, ठीक है। 4 रेड 0 रेड ये हमारा पहला केस हो गया। सेकंड केस हो गया 3 रेड ऑन वन साइड एंड देन 1 रेड, देखिए 3 रेड उसके बाद में एक येलो फिर 1 रेड देन 1 येलो, तो दिस विल ऑल्सो बी एग्जैक्टली वन वे, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारा लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो लेफ्ट राइट वाला मामला सेम आ जाएगा, एग्जैक्टली वन वे आएगा। और थर्ड केस विल बी व्हेन देयर आर 2 रेड एंड 2 रेड, और इसका भी एग्जैक्टली वन वे ही होगा। बेसिकली देयर आर टोटल 3 वेज व्हेन देयर आर 4 रेड बीड्स एंड 2 येलो बीड्स। अब यहाँ पे हमें काउंटिंग मैनुअली करना पड़ेगा, इसका कोई स्ट्रेट अवे फॉर्मूला नहीं है, क्या ही क्लियर है। 4 रेड 0 रेड 3 रेड 1 रेड और 2 रेड 2 रेड, and 4 red 0 red will be same as 0 red 4 red, because ultimately clockwise anti clockwise is exactly same story 3 red 1 red will be same as 1 red 3 red, because ultimately clockwise anti clockwise exactly same, और 2 red 2 red वाला तो वैसे ही 2 red 2 red है, ये तो सेम है ही, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In how many ways can we make a garland using 3 distinct yellow, 5 distinct blue and 4 distinct red colored flowers if flowers of the same color must be together? अगर हमारे सेम कलर के फ्लावर्स को साथ में रखना है तो कितने अरेंजमेंट यहाँ पे बनने वाले हैं, कितने अरेंजमेंट बनेंगे। कंडीशन क्या है, 3 येलो कलर्ड फ्लावर्स आर डिस्टिंक्ट, 5 blue colored flowers are distinct and 4 red colored flowers are distinct and flowers of the same color must be together, यानी कि सारे के सारे all yellow must be together, all blue must be together and all red must be together, सारे येलो साथ में रहेंगे, सारे ब्लू साथ में रहेंगे, सारे रेड साथ में रहेंगे। तो सिंस देयर आर 3 ग्रुप्स बेसिकली एंड 3 ग्रुप्स हैव टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कल, गार्लैंड यानी कि एक सर्कल में अरेंज करना है, एक सर्कल में अरेंज करना, नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे हमारे, दैट विल बी 3 फॉर 3 दिस विल बी 2 फैक्टोरियल, ठीक है 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके एंड देन एक 1/2 बाहर रखेंगे या डिवाइड बाई 2 करेंगे फॉर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम रहेगा, एंड देन येलो वाले आपस में अरेंज हो सकते हैं बिकॉज ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट, इस बार सेम थोड़ी है, सब डिस्टिंक्ट है, तो 3 येलो आर डिस्टिंक्ट, दे कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि जैसे हमने पहला अरेंजमेंट अपना कंप्लीट कर दिया उसके बाद में सबको लीनियर है, और 5 फैक्टोरियल फॉर ब्लू एंड 4 फैक्टोरियल फॉर रेड, दिस विल बी 2 फैक्टोरियल बाई 2 यानी कि 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 120 इंटू 24, ओके यानी 120 इंटू 144, यानी कि 17280 17,280 ways in total such that same colored flowers are together, clear। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In how many ways can 5 people be arranged around a circular table if 2 particular people must always sit together and 2 others must not sit together? 5 persons have to be arranged around a circular table such that 2 particular persons must always sit together and 2 others must not sit together. Let us assume कि 5 persons हैं हमारे A, B, C, D and E. Now A and B, these two let us say have to sit together and C and B cannot sit together. C and D को सेपरेटली बिठाना है, A और B को साथ में बिठाना है। तो पहले जिन पे कोई कंडीशन नहीं है यानी कि ए और बी को साथ में बिठा लेते हैं, और ई पे भी कोई कंडीशन नहीं है, सी और डी को सेपरेट बिठाना है, तो पहले सी और डी को अलग छोड़ते हैं, ए बी एंड ई को कंसिडर करते हैं एंड वी कैन अरेंज देम, ठीक है। सो ए बी इज वन ग्रुप, ई इज अनदर ग्रुप, टोटल 2 ग्रुप्स आर देयर, और इनको अरेंज करना है एक सर्कल में, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 2 पर्संस, बेसिकली 2 यूनिट्स आर देयर, और इनको अरेंज करना सर्कल में, नंबर ऑफ वेज अरेंज हो जाएगा 2 - 1 फैक्टर यानी कि एक्जैक्टली वन वे, ठीक है। तो ऑन वन साइड वी विल बी हैविंग ए बी, ऑन वन साइड विल बी हैविंग ई, बट ध्यान ये रखना है कि ये तो वेज आ गए हमारे इनको अरेंज करने के, बट ए एंड बी कैन अरेंज अमंग देमसेल्व्स, तो मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली इसके बाद में
1 को मल्टीप्लाई करोगे फॉर देयर अरेंजमेंट 1 into 2, 2 वेज हो जाएंगे। अभी हमने ए बी और ई को अरेंज कर दिया, सी और डी को अरेंज करना बाकी है। ठीक है, नाउ सी कैन बी लेट अस से प्लेस्ड, एक केस होगा सी को प्लेस करोगे ऑन द राइट साइड, डी ऑन द लेफ्ट साइड, और सेकंड केस बनेगा हमारा व्हेन D will be placed on the right side and C will be placed on the left side. So these two will be separate cases because obviously यहाँ पे persons को सीट कर रहे हो तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम थोड़ी होने वाला है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे, 2 वेज फॉर एवरी ऑफ दीज 2 वेज आर देयर, तो 2 into 2 टोटल 4 वेज आर देयर, प्लेस देम, आंसर विल बी 4, 4 अपना आंसर होगा। ओके, ठीक है, 4 विल बी द आंसर इन दिस केस। बेसिकली क्या हुआ, 1 फैक्टोरियल वे में हमने अरेंज किया सबसे पहले ए बी और ई को, देन ए बी कैन अरेंज अमंग देमसेल्व्स 2 फैक्टोरियल वेज में, देन वी हैव एग्जैक्टली 2 स्पेस नाउ बिटवीन ए बी एंड डी, 2 स्पेसेस हैं और देयर आर 2 पर्सन सी एंड डी, तो 2C2 ways में we selected those 2 spaces for C and D and they can arrange among themselves in 2 factorial ways, so this is equal to 4 way। second way could have been कि हम पहले सारे केसेस लेते when A B are together, ठीक है, A B को टुगेदर ले लो, देन वी C D and E, सारे केसेस काउंट कर लो, सो सारे केसेस कितने आएंगे, टोटल 4 यूनिट्स हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं 4 यूनिट्स को, और ए बी आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, टोटल केसेस। और सब्ट्रैक्ट दोज केसेस व्हेन सी एंड डी आर टुगेदर, वो हटा दोगे तो बाकी बचे हुए केसेस हमारे मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे कौन से केसेस आएंगे, व्हेन ए एंड बी आर टुगेदर, सी एंड डी आर टुगेदर, तो ये तो बेचारा अकेला ही है, तो टोटल 3 यूनिट्स हैं, अरेंज करने के वेज होंगे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई ए बी कैन अरेंज अमंग देमसेल्व्स 2 फैक्टोरियल, सी डी कैन अरेंज अमंग देमसेल्व्स 2 फैक्टोरियल, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू 12 minus 8 and hence number of ways will be equal to 4 only, 4 अपना आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, तो क्लियर है बात? ओके, आगे मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 persons कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी 2 अरेंजमेंट्स। नंबर वेज इन विच 6 persons कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, अगर सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता तो हमें पता था 5 फैक्टोरियल आंसर होता, बट इसके बाद में एक और लाइन मेंशन्ड है, सो दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी 2 अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी 2 अरेंजमेंट। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करते हैं so that हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। लेट अस से 6 पर्सन के बजाय लेट अस अज्यूम कि 4 पर्सन हैं इन टोटल, 4 पर्सन हैं ए बी सी एंड डी, इनको अरेंज करते हैं सच दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नंबर्स इन एनी 2 अरेंजमेंट्स, यानी कि 2 अरेंजमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जहाँ पे कि नेबर्स सेम हो। अब नेबर्स सेम होने का मतलब क्या हुआ, लेट अस से हमने अरेंज किया ए देन बी देन सी देन डी, ठीक है, 4 पर्सन को अरेंज करना है सर्कल में, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, दैट विल 3 फैक्टर, यानी कि 6 होंगे, 6 होंगे, ठीक है, ए बी सी डी हो गया, दिस इज फर्स्ट। सेकंड कुड बी ए सी बी डी, ओके, थर्ड केस कुड बी ए डी बी सी, फोर्थ ए बी डी सी, फिफ्थ ए सी डी बी एंड सिक्स्थ ए डी सी बी, टोटल 6 केसेस आ गए हमारे। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई 2 केसेस जहां पे कि सेम नेबर्स हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में हमने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट में ए के नेबर्स क्या है, बी और डी है, क्या कोई और केस है जहां पे कि ए के नेबर्स बी और डी हो, बिल्कुल है, 6 वाला, ए के नेबर्स बी और डी है, और फिर बी के नेबर्स भी देखो, बी के नेबर्स है ए एंड सी, यहाँ भी बी के नेबर्स है ए एंड सी, यानी कि डेफिनेटली फर्स्ट एंड सिक्स्थ आइडेंटिकल, basically identical in a case that the neighbors are same for every person। ए के नेबर्स है बी एंड डी, वहां भी बी एंड डी, बी के नेबर्स है ए एंड सी, वहां भी ए एंड सी के नेबर्स है बी एंड डी, वहां भी है, और ऑब्वियसली फिर डी के भी सेम ही होंगे, यानी कि 1 and 6 आर सेम इन दिस रिस्पेक्ट दैट दे हैव
exactly same neighbors. So 1 and 6 are same. Similarly 2 में A के neighbors are C and D, and in 3 are also they are C and D. So 2 and 3 are same in that respect. And similarly हमारा 4 and 5 are same. और बेसिकली फर्क क्या है, 1 और 6 को अगर ऑब्जर्व करो तो बेसिकली 1 अगर हम क्लॉकवाइज देख रहे हो 1 में तो दिस इज ए बी सी डी, एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या है, दिस इज ए डी बी सी, ए डी सी बी, और यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज दिस इज क्लॉकवाइज ए डी सी बी. जो क्लॉकवाइज आ रहा है 6 में वही एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि इन दिस केस स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर सेम. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जहाँ पे क्या कह रहा है सेम नेबर्स इन टू अरेंजमेंट्स, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट हमें सेम काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज इन क्लॉकवाइज केस में जो हमारे नेबर्स आ रहे हैं वही सेम, एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो भी तो नेबर्स तो सेम ही रहेंगे, नेबर्स थोड़ी चेंज होने वाले हैं. तो बस यहाँ पे सिर्फ इतना काम करना है हमको, अगर 4 पर्सन्स को अरेंज करना है सच दैट नो टू अरेंजमेंट शुड हैव सेम नेबर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को सेम मानना पड़ेगा. सो फॉर 4 पर्सन नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक्जैक्टली 3 वेज. बट हमारे क्वेश्चन में क्या है 6 पर्सन्स हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इन दिस केस फॉर 6 पर्सन्स दिस विल बी इक्वल 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दिस विल बी 60 ways. In 60 ways we can arrange 6 persons such that no two arrangements have exactly same neighbors. Is that clear? ठीक है, आंसर होगा अपना 60. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो दिस इज वन सच स्पेशल केस जहाँ पे कि हमारे पर्सन्स अरेंज कर रहे हैं बट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे. अदरवाइज क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर कंसिडर्ड सेम, तो बस डिवाइड बाई 2 करना है और कुछ नहीं करना वहाँ पे. ओके, सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन, एंड आई बिलीव जो भी डिस्कस किया सेशन में समझ में आएगा और मजा आएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बिकॉज ये क्वेश्चंस हमें फंसाते हैं. नेक्स्ट सेशन में भी हम सर्कुलर अरेंजमेंट क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ और एडवांस क्वेश्चन करेंगे, कुछ डाइसो क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे जहाँ पे कि हम कलर करेंगे और कितने तरह से कितने अप्रोचेस से हम किस तरह से समझ सकते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट को यूज़ करके उन क्वेश्चंस को अपने आसान बना सकते हैं. सो इफ़ तुम्हें ये सेशन में चीज़ें समझ में आई हैं तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, और अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी अंडरस्टैंडिंग में तुम्हें कहीं भी डाउट रहा है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड ऑल्सो गिव अ फीडबैक इन द कमेंट्स. एंड आई होप कि तुम्हें सेशन में बहुत कुछ समझ में आएगा और चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जहाँ जहाँ पे तुम्हारे डाउट्स होंगे सर्कुलर अरेंजमेंट सर्कुलर परमुटेशंस के, तो आज क्लियर हुए होंगे. एंड फॉर ऑल दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड इफ यू हैव नॉट joined the Telegram channel, then join the Telegram channel Methodological, and for any questions or queries or anything that you want to ask regarding your preparation, you can always ask me at ADITYKT on Telegram. That's all in this session. I'm signing off. Bye bye, take care and keep learning.